What happened? Why do you have a long face? I lost my job. How come? My company laid me off. Companies are laying off employees as coronavirus takes its toll on revenue. There is mass layoff in all sectors. Companies have freezed hiring. I'm afraid I won't be able to find any job. I was about to get an hike this month. I don't know what will happen to me. All my dreams are shattered. How will I meet my expenses? God's plans are always better than our dreams. Don't lose heart. Always remember what Martin Luther King Jr. said. If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Don't panic, please. I know you are a hard working man. I know how tough, how difficult it is. But it will be your time soon. Anyway, when is the last time you watched a comedy movie? I often watch comedy movies. How often do you watch comedy movies? I watch comedy movies every weekend. Let's watch a comedy movie together. I don't want to watch a comedy movie. You don't understand my problem. You don't know what I am going through. Take it easy. I'll speak to my friends, and if there is any vacancy, I will let you know. Kindly apprise me. Well, how about you? I am laid off too. What? I am laid off too. Why are you so shocked? As many as 5 million youth in India lost their jobs due to COVID-19 pandemic. I am one of them. How can someone keep calm after losing his job? Tell me one thing. If I start crying, will it solve all my problem? Worry don't solve our problems. Instead, it increases. Just dust yourself off and start all over again. Today you taught me the true meaning of life. Thank you. तो अब समय है क्वेश्चंस आंसर्स का। शुरुआत करते हैं हाउ कम से। हाउ कम का क्या मतलब है और इसका प्रयोग हमें कहाँ करना चाहिए। हाउ कम का मतलब है अरे ऐसा कैसे हो गया। जब भी कोई आपको ऐसी चौंकाने वाली सूचना दे तो आप कह सकते हैं कि हाउ कम। जैसे कोई आपको कहे कि रमेश अब तक ऑफिस नहीं आया तो आप कह सकते हैं कि हाउ कम। आपके हाउ कम का मतलब यहाँ है कि आप कह रहे हैं कि ऐसे कैसे रमेश अब तक ऑफिस नहीं आया। आप चाहें तो सिर्फ हाउ कम कह सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप यह भी कह सकते हैं कि हाउ कम ही डिड नॉट कम टू ऑफिस। हाउ कम का हम रोज़मर्रा के जीवन में बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं। हम कह सकते हैं कि हाउ कम यू मिस द ट्रेन। आपकी ट्रेन कैसे छूट गई। हाउ कम यू लॉस्ट योर पर्स। ऐसे कैसे तुमने अपना पर्स खो दिया। या फिर किसी ने कहा कि आई लॉस्ट माई पर्स तो आप कह सकते हैं कि हाउ कम। आप किसी से यह भी पूछ सकते हैं कि हाउ कम यू नेवर मैरिड। मतलब आप यहाँ आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि आपने अभी तक शादी नहीं की। कोई कहे कि वॉट एवर यू हैव सेड आई हैव डन बट इट्स स्टिल नॉट वर्किंग। वॉट एवर यू हैव सेड आई हैव डन बट इट्स स्टिल नॉट वर्किंग। मतलब आपने जो भी कहा वो मैंने किया पर यह अभी भी काम नहीं कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि हाउ कम, ऐसा कैसे हो गया। अब बात करते हैं ले ऑफ की। ले ऑफ का मतलब है नौकरी से निकाल देना या छटनी कर देना। आई एम लेड ऑफ। आई एम लेड ऑफ। आई एम लेड ऑफ का मतलब है मुझे नौकरी से
निकाल दिया गया। माई कंपनी लेड मी ऑफ, माई कंपनी लेड मी ऑफ का भी यही मतलब है कि मेरी कंपनी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अभी कोविड-19 के कारण ले ऑफ का जिक्र हमें हर तरफ सुनने को मिल रहा है। अब बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही काम के वाक्य की। इसका इस्तेमाल हम तरह तरह से कर सकते हैं। When is the last time you watched a comedy movie? When is the last time you watched a comedy movie? आपने आखिरी बार कोई कॉमेडी मूवी कब देखी थी? When is the last time you laughed? अगर कोई शख्स चुपचाप दिख रहा है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि When is the last time you laughed? आप आखिरी बार कब हंसे थे? When is the last time you talked to your mother? आपने आखिरी बार अपनी माँ से बात कब की थी? When is the last time you talked to your mother? आपने अपनी माँ से आखिरी बार कब बात की थी? When is the last time you went to तिरुपति? आप आखिरी बार तिरुपति कब गए थे? When is the last time we met? हम आखिरी बार कब मिले थे? बहुत लोग यहाँ was का भी इस्तेमाल करते हैं। When was the last time we met? पर is का इस्तेमाल ज़्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है। When is the last time you did something for the first time? When is the last time you did something for the first time? आपने आखिरी बार कुछ नया कब किया था? When is the last time you did something for the first time? Companies have frozen hiring और companies have freezed hiring। इसका मतलब है कि कंपनियों ने नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। Companies have frozen hiring। Companies have frozen hiring स्टैंडर्ड है, जबकि Companies have freezed hiring नॉन स्टैंडर्ड है। हालांकि दोनों का ही इस्तेमाल होता है। I am afraid I won't be able to find any job। I am afraid I won't be able to find any job। मुझे डर है कि मुझे दूसरी नौकरी नहीं मिल पाएगी, या मुझे डर है कि मैं दूसरी नौकरी नहीं ढूंढ पाऊंगा। I am afraid I won't be able to find any job। I am afraid का अंग्रेजी में तरह तरह से इस्तेमाल होता है। अगर आप किसी चीज़ के लिए किसी को विनम्रता से मना करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि I am afraid that I cannot accept this job। हिंदी में इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैं नौकरी का यह ऑफर स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे अगर आप किसी से पूछते हैं कि Will you be able to attend the meeting tomorrow? Will you be able to attend the meeting tomorrow? क्या आप कल मीटिंग में आएंगे? और सामने वाला शख्स कहता है I am afraid not। तो इसका मतलब है कि वह कह रहा है कि मैं नहीं आऊँगा, पर वह इस बात को विनम्रता से कहने के लिए I am afraid का इस्तेमाल कर रहा है और कह रहा है कि I am afraid not। Could you lend me 2000 rupees? क्या आप मुझे 2000 का कर्ज देंगे? I am afraid not मतलब मैं नहीं दे पाऊंगा। All my dreams are shattered इसका मतलब है मेरे सारे सपने टूट गए। How often? How often का इस्तेमाल अंग्रेजी में बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे आप किसी से पूछते हैं कि How often do you watch movies? और वो कहता है कि I watch a movie daily। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन थोड़ा अजीब लगेगा, पर अंग्रेजी में इसका खूब इस्तेमाल होता है। How often do you watch movies? How often do you watch movies? कहने का मतलब है कि आप किसी से उसकी मूवी देखने की आदत के बारे में जानना चाह रहे हैं कि वह अक्सर मूवी देखता है या कभी कभार देखता है। वह कहता है कि I watch a movie daily मतलब मैं रोज़ मूवी देखता हूँ। जैसे आप कह सकते हैं How often do you change your password? मतलब आप यहाँ पूछ रहे हैं कि आप कितने समय के बाद अपना पासवर्ड बदल लेते हैं। तो वह कहता है कि I change my password every 3 months मतलब वह कह रहा है कि मैं हर 3 महीने पर अपना पासवर्ड बदल लेता हूँ। How often do you brush your teeth? आप कितनी बार अपने दांतों की सफाई करते हैं?
हाउ ऑफन का इस्तेमाल अंग्रेजी में बहुत ही ज़्यादा होता है। आप रोज़मर्रा की ज़रूरत के मुताबिक इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ अबाउट यू। हाउ अबाउट यू का मतलब है आप कैसे हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि हाउ आर यू, तो आप कह सकते हैं कि आई एम फाइन एंड हाउ अबाउट यू, मैं अच्छा हूँ और आप कैसे हैं। प्लीज़ अप्राइज मी, इसका मतलब है कृपया मुझे अवगत कराएं। जैसे आप कह सकते हैं कि आई कांट अटेंड मीटिंग टुडे, प्लीज़ अप्राइज मी आफ्टर मीटिंग, मैं आज मीटिंग में शामिल नहीं हो सकता, मीटिंग में जो भी हो उससे कृपया मुझे मीटिंग के बाद ज़रूर अवगत कराएं। अब बात करते हैं टेक्स इट्स टोल। टेक्स इट्स टोल का मतलब है बहुत बुरा असर, बहुत बुरा प्रभाव। जैसे आप कह सकते हैं कि कोरोना वायरस टेक्स इट्स टोल ऑन रेवेन्यू, मतलब कोरोना वायरस का बहुत बुरा असर रेवेन्यू पर पड़ रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।